1 plus minus x to the power n will approximately be equals to नेचुरल लॉगरिथम है. नेचुरल लॉगरिथम को हम log base 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं by multiplying it with a factor of 2 till infinity, before till infinity. And how we can get the R equivalent? Line is way more steeper than the first line, and the third line is also more steeper than the second line, and the rest to basically. तो ये देखिए अब थीटा constantly increase कर रहा है. Can be increasing, can be decreasing, or can be constant. Thus corresponding slope can also be increasing, decreasing, or constant. Jai Hind. This is Sri Duti, and today we are going to discuss the third lecture of a series of basic mathematics, and our topic of discussion of today will be basically binomial approximation, logarithm and corresponding anti-logarithm, and then we're proceeding towards arithmetic progression, geometry progression, and then we'll be concluding this lecture with that part of the curves of a slope. Now this will be basically a short lecture, not a 1 hour or 2 hour duration lecture. Around the lecture is expected to be completed around 45 minutes. So let's start the lecture. So basically, topic of binomial approximation is basically to use for some very small calculation purposes or approximating some very higher order calculations basically in the due course of physics. Now how do we do this? Basically, if we say there's a fraction x, I'm taking the mod of the function x, and this fraction is basically very less than 1. Now basically I'm telling you that x is a fraction. X is a fraction. So for x to be a fraction, we have taken only the magnitude of it, not the sign. Now if this is the given condition that x is mod of x is very less than 1, then we can say 1 plus minus x to the power n will approximately be equals to 1 plus minus n into x. This is the substantial or modification for physics calculation in our due course of physics. This is called as binomial approximations. This is the general condition. Now in this condition we can have various possibilities. So what are the given possibilities? Suppose if I am telling you 1 plus x to the power n will be approximately equals to 1 plus nx. Similarly, 1 minus x to the power n will approximately be equals to 1 minus nx. और भैया 1 minus और 1 minus x to the power minus n will approximately be equals to, भैया माइनस यहाँ पर आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 plus nx. ठीक. और ऑल्सो वी कैन से भैया और एग्जाम्पल लीजिए. तो बोले चलते हैं कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन, तो क्या होगा भैया, तो हो जाएगा ये 1 माइनस एन एक्स. जस्ट कुछ नहीं, जब पावर में जो है ना, जो हम लोग एक्सपोनेंशियल जो पावर में जो है वो पावर को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो. कंडीशन क्या है भैया, एक्स बहुत छोटा है. एग्जाम्पल देखिए, तो भैया अब तो कंडीशन बोला तो एग्जाम्पल देकर दिखा लीजिए. तो जस्ट लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. 1 प्लस 1 बाई 1000 होल टू दी पावर 10, ऐसा कुछ है मेरे पास. तो भैया इसमें हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस 10 का मल्टीप्लाई कीजिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 बाई 1000. तो काटेंगे में क्या आएगा, ये 0.01 आएगा. इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.01. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस 1000. ऐसा भैया क्या है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व लाइक दिस. ठीक है भैया, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 1.001 होल टू द पावर 10. इसको करना है अप्रॉक्सीमेशन, सॉल्व करना है इसको. 1.001 होल टू द पावर 10 कैसे करेंगे इसको? तो पहले आप ट्राई कीजिए. 1 2 3, चलो हम करते हैं. ठीक है, देखिए कैन आई से दिस 1.001 एज भैया 1 प्लस 1 बाई 1000 होल टू द पावर 10. देखिए तो ये क्या था, ये 0.001 था, तो 1 प्लस 0.001 मतलब 1 प्लस 1 बाई 1000. ठीक है, तो भैया 1 प्लस 1 बाई 1000 है. इसको हम अगर अप्रॉक्सीमेशन यूज करें, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, क्या आएगा भैया, ये आएगा मेरा 1 प्लस 10 बाई 1000. हाँ कि ना, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कैसे किया इसको, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन. तो ये क्या आएगा भैया, ये आएगा मेरा
1 प्लस ये 0 0 कट गया यहाँ से, ये आएगा 1 प्लस 1/100 मतलब 1.01, ये मेरा आंसर है। ठीक, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं पहले। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है मेरे पास 0.98 होल टू द पावर 1/2, 0.98 होल टू द पावर 1/2। अब ट्राई कीजिए इसको पहले, 1 2 3 कैसे करें। देखिए 0.98 तुम क्या बोल सकते हैं इसको हम कि इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.02 होल टू द पावर 1/2। कैन आई से लाइक दिस। अब देखिए भैया 0.98 है, 0.9 मतलब क्या है भैया 1 माइनस 0.02 है, हाँ कि ना। ठीक, अच्छा तो अगर 1 माइनस 0.02 हो गया तो उसको भैया लीजिए ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, क्या है ये चीज़, ये आएगा 1 माइनस ये हाफ अंदर आएगा, हाफ इंटू 0.02 मतलब भैया ये 2/100 है। ठीक, तो क्या आएगा ये चीज़, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1 माइनस 2 कट गया यहाँ से, ये आएगा 1 माइनस 1/100 मतलब 1 माइनस 0.01 which is equals to 0.99, जिसमें आंसर। भैया इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम पहले फर्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भैया मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है, द थर्ड क्वेश्चन इज 1/√0.98। भैया इसको सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व दिस वैल्यू ऑफ 1/√0.98। अब ट्राई कीजिए पहले, कैसे करेंगे भैया इसको। तो ये अगर बोले हमको तो देखिए इट इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 0.98 होल टू द पावर 1/2, और यू कैन ऑल्सो से इट लाइक दिस, इट इज इक्वल्स टू 1 बाई, और डायरेक्टली इफ आई से इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 0.98 होल टू द पावर माइनस हाफ। हाँ कि ना भैया, रूट को हम बोल सकते हैं टू द पावर हाफ है, और नीचे में है डिनोमिनेटर में ऊपर उठाएंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 0.9 होल टू द पावर 1/2। भैया इसको हम कर सकते हैं क्या अप्रोक्सीमेशन, चलिए देखते हैं। दिस 0.98 होल टू द पावर 1/2 कैसा करेंगे इसको, माइनस हाफ। सो कैसे किया जाएगा, इट इज बेसिकली बाय बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इट इज इक्वल्स टू, भैया इसको हम क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.02 होल टू द पावर माइनस हाफ। अब हो गया काम मेरा। ये देखिए 0.02 इज वेरी लेस देन 1, सो हाउ टू सॉल्व दिस, इट विल बी इक्वल्स टू, और बाय बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ मतलब ये प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 2/100, 2 कट गए यहाँ से, इट इज 1 प्लस 1/100 विच इज इक्वल्स टू 1.01। दिस इज द वे टू सॉल्व द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बहुत इजी चीज़ है भैया, मुझे देख के लग रहा है बहुत इजी चीज़ है, आप लोग कर पाएंगे, और थोड़ा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना भैया, मेरे पास और एक क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम ग्रेविटेशन। ये बेसिक मैथ्स हम करेंगे सॉल्व, जो होता है मतलब बेसिक रूल्स है वो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो भैया क्या क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज स्टेटिंग दैट गिवन दैट GH इक्वल्स टू GM/R प्लस H होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ GH इफ H इज वेरी लेस देन R। भैया ये क्वेश्चन किसका है, दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट H फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। मैं उसको हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, तब अच्छे से बोल पाएंगे क्या चीज़ है ना चीज़ है। हियर G इज बेसिकली यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड M इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर अर्थ ही होगा बेसिकली भैया, और R मेरा रेडियस ऑफ अर्थ है, और H मेरा क्या है, ये मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अच्छा तो भैया ये तो हो गया मेरा चीज़, इक्वेशन पढ़ेंगे क्या है ना, पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो टू सॉल्व दिस बेसिक, देखिए कैसे कहते हैं इसको, कैन आई से दिस दैट इज GH is equals to GM into GM by R plus H होल स्क्वायर। इसको मतलब भैया इसको इक्वेशन देख के हम क्या बोलेंगे कि A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो तोड़ दीजिए भैया A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे। तो क्या करें भैया, तो देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इस टाइप से कि अगर मैं डिनोमिनेटर से भैया अगर मैं R कॉमन निकाल लूँ, डिनोमिनेटर से R कॉमन निकालूं, मतलब यहाँ पर अगर बोलूँ किसको कि जो मेरा स्क्वायर था ब्रैकेट के बाहर में रख दीजिए यहाँ पर, और R प्लस H अंदर में है, यहाँ पर अगर मैं R कॉमन ले लेता हूँ तो क्या ये मेरे पास 1 प्लस H/R ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर R लेता हूँ बाहर में तो आएगा भैया R इंटू 1 प्लस H/R, यही आना चाहिए। अच्छा भैया इसको होल स्क्वायर चपा है, पर इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है तो आएगा होल स्क्वायर में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ GH इज बेसिकली इक्वल्स टू
जी एम बाई ये स्क्वायर अंदर लीजिए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर इसका होल स्क्वायर। ठीक भैया एक कुछ चीज़ है कि हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में कि जो मेरा जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ये टर्म, ये भैया ये जो मेरा टर्म है जी एम बाई आर स्क्वायर, दिस टर्म इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब भैया ये जो मेरा जी आएगा इट इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर एट सरफेस। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है जी एम बाई आर स्क्वायर वैल्यू लेते हैं जी, दिस इज इक्वल्स टू जी। तो क्या होगा भैया, ये होगा जी एट हाइट एच इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। अच्छा भैया ये मेरा नया क्वेश्चन आएगा, इसमें आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। कैसे करेंगे मॉडिफिकेशन, क्या इसको हम बोल सकते हैं जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर होल टू द पावर -2। मैं इसको हम ये जो पूरा डिनोमिनेटर था स्क्वायर टर्म में था इसको हम लेंगे ऊपर में, इसको हम लेंगे दिस एंटायर डिनोमिनेटर इज बेसिकली टेकन टू न्यूमरेटर साइड। तो ये स्क्वायर जो मेरा पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा भैया, ये -2 हो गया। अब इसमें लगा ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, कैसे करेंगे भैया इसको, तो जी एट हाइट एच इसे हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं भैया, ये -2 का अंदर ला लीजिए, क्या आएगा, ये आएगा जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। यही मेरा फॉर्मूला भैया, इसको सॉल्व करके मुझे यही मिलता है और यही मेरा बेसिक इक्वेशन भी है दैट फॉर बेसिकली very less height around 2 kilometer तब तो around h around equals to around less than equal to 2 kilometers. So for that particular height we can use this binomial approximation, but in gravitation we prefer using this general formula for if we prefer using this generalized formula, but in some cases for easier calculation or faster calculation for lesser height basically around 2 kilometers हम prefer करते हैं इस इक्वेशन को यूज करने के लिए। तो हाँ इसको हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बोल दिया। ठीक है, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ा भी है और थोड़ा सा क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चंस आएगा आप घर में ट्राई कर लीजिए, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको मिल सकता है, वो घर में ट्राई कर लीजिएगा। आपको रेस्पेक्टिव जो मॉड्यूल्स वगैरह होगा या फिर कुछ भी क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन मिल जाएगा द टॉपिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बोलिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में कुछ क्वेश्चन ऐड कर देंगे। नाउ द टॉपिक इज लॉगरिथम। लॉगरिथम टीच क्या है, तो इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फंक्शन, इट इज बेसिकली अ फंक्शन, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंक्शन। भाई लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है भैया, तो लॉगरिथम में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है द फंक्शन ऑफ LOG लॉग। ये भैया मेरा नॉर्मल लॉग है। अगर इसको हम नेचुरल लॉग में बोले तो नेचुरल लॉग आएगा यहाँ पर लॉग बेस ई, ये मेरा नेचुरल लॉगरिथम है। तो ये चीज़ क्या है, तो बेस फिर क्या बोले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से हम। तो ये जो चीज़ है लॉग, ये जो दिस थिंग लॉग इज दिस लॉग में भैया मेरे पास कुछ टर्म्स होते हैं। कैसे टर्म, तो एक चीज़ होता है कॉल्ड एज बेस, बेस बी से, और एक डोमेन होता है मुझे, और डोमेन मेरा जो फंक्शन का डोमेन आएगा वो मेरा एक्स है। तो ये टोटल चीज़ को हम बोलते हैं लॉग विच इज इक्वल्स टू अ वैल्यू वाई। अच्छा, तो ये इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कौन क्या टर्म है। तो देखिए ये जो मेरा बी है, बी दिस बी इज कॉल्ड एज बेस। लॉग का जो बेस होता है उसको बी कहा जाता है। आपको सब पता होगा क्योंकि आईसीएससी में क्लास 9th या 10 में फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है, सीबीएसई में ऐसा जो डिस्क्रिप्शन लॉग का नहीं है, लेकिन फिर भी 11 में आकर हमको पढ़ना पड़ता है लॉग। तो बी इज बेसिकली बेस, द एक्स इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मेरा डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये मैथ्स का बेसिक पार्ट हो गया। ये मैथ्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में और क्लास 11 में पढ़ते हैं, जैसे सेट थ्योरी में आके कि रेंज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, वहाँ पर बोला जाता है। तो डोमेन इज बेसिकली जो वैल्यू हम फंक्शन में इनपुट दे रहे हैं वो मेरा डोमेन है, और रेंज मेरा आउटपुट है। मतलब ये वाई है मेरा रेंज है, क्योंकि जो पूरा सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो मेरा वाई आएगा, ये मेरा रेंज है। ठीक है, और एक्स में जो इनपुट है, एक्स में हम जो वैल्यू पुट करेंगे भैया वही मेरा इस फंक्शन में कुछ वैल्यू सॉल्व होकर आउटपुट आएगा। जैसे अगर बोलेंगे साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो यार यहाँ पर एक्स मेरा डोमेन है, वाई मेरा रेंज है। ठीक है, तो here x is domain and y is the value of the function, y is the range और value of the function। अच्छा जी, तो मेरा बेस x और रेंज मैंने बोला, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लॉगरिथम। और इसमें से भैया अगर ये मेरा बेस, ये मेरा बेस है, if this base, if base is e मतलब क्या है, is the base of natural logarithm। if this base is e then we call it as natural log, then it is log base e is the natural log called as ln,
ln मतलब क्या है, ln मतलब ln है, इसको प्रोनाउंस करते हैं लॉन, कोई कोई इसको ln बोलता है, ln लॉग बेस ई ऑफ एक्स, मतलब इसको हम ln ऑफ x बोलते हैं, कोई कोई इसको हम ln x भी प्रोनाउंस करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बेसिकली इट इज ln ऑफ x और इक्वल्स टू लॉग बेस ई ऑफ x व्हिच इज द नेचुरल लॉगरिथम। ये क्या भैया, इट इज माय नेचुरल लॉगरिथम। और ये मेरा जनरलाइज लॉगरिथम है, इट इज माय जनरल लॉगरिथम। अच्छा, तो इसका कुछ प्रॉपर्टी भी होगा, हाँ प्रॉपर्टी था, लेकिन पहले एक टर्म है जैसे लॉग को इन्वर्स इनको पढ़ना पड़ेगा। तो भैया इसको प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक चीज़ है कि अगर मुझे कोई फंक्शन पढ़ना पड़ता है ना भैया फंक्शन, तो फंक्शन के साथ साथ उसका इन्वर्स भी पढ़ना जरूरी होता है, फंक्शन के साथ उसका इन्वर्स भी पढ़ना होता है एसेंशियल। तो यहाँ पे जो लॉग है इसका इन्वर्स कहा जाता है एंटी लॉग, मतलब भैया क्या देखते हैं, तो ये जो मेरा लॉग ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू वाई है भैया, लॉग बेस बी ऑफ एक्स इज वाई है, उसका एंटी मतलब इन्वर्स जो है इन्वर्स वो आएगा मेरा, इन्वर्स जो आएगा भैया वो आएगा मेरा एंटी लॉग, एंटी लॉग और इन्वर्स ऑफ लॉगरिथम। ये क्या चीज़ है भैया, इन्वर्स जो है ये मेरा रिप्रेजेंट, तो भैया इन्वर्स जो है, इस इन्वर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये मेरा लॉग बेस बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई अगर है लॉग बेस बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो भैया जो एक्स का वैल्यू आएगा यही मेरा एंटी लॉग है, एक्स का जो वैल्यू आएगा यही मेरा एंटी लॉग है, इट विल बी इक्वल्स टू बेसिकली बी टू द पावर वाई। क्या भैया, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा बेस टू द पावर द रेंज, बेस टू द पावर द रेंज, इट इज बेसिकली माई एंटी लॉग। क्या भैया, जो मेरा एंटी लॉग है मतलब जो मेरा डोमेन का वैल्यू आएगा, डोमेन का वैल्यू मतलब डोमेन मतलब क्या है, अगर इस पूरे चीज में से अगर मैं फंक्शन को हटा दूं तो भैया हटाने से जो मिलेगा वैल्यू वही मेरा एंटी लॉग है। कैसा है, तब भैया आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, हम थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल से बोलते हैं कि अगर मैं बोलूँ भैया साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास अगर वाई है भैया, तो यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू क्या आता है, ये आता है मेरा साइन इनवर्स ऑफ वाई, वही तो ना। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भैया एक्स जो वैल्यू मेरा आएगा लॉग ऑफ एक्स अगर वाई है, तो उसको हम बोलूँ भैया कि जो एक्स आएगा ये मेरा लॉग इनवर्स ऑफ वाई आएगा भैया, लॉग इनवर्स ऑफ वाई आएगा, बेस बी तो था तो लॉग बेस बी का इनवर्स ऑफ वाई आएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे भैया ये आता है मेरा बी टू द पावर वाई। ठीक है, आप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो ये इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब भैया हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लॉग का, कैसा प्रॉपर्टीज, तो पहले बस जो प्रॉपर्टीज है मेरे जो कॉमन फार्मूला और प्रॉपर्टीज जो बोलिए आप, मेरा कॉमन जो फार्मूला है और जो प्रॉपर्टीज है वट एवर यू कैन से, बेसिकली वो क्या क्या है। The number one is basically log m into n, log m into n, n दो मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी बेस में हो सकता है भैया, log m into n is equals to log m प्लस log n। भैया आपने log यहाँ पर बेस नहीं लिया, तो अगर बेस नहीं दिया है, अगर बेस नहीं दिया है तो हम नेचुरल इसको हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। अगर बेस नहीं मेंशन किया तो 10 मान लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया कि लॉग लिखा नहीं है तो आप, लेकिन आपको लिखा नहीं है लेकिन आपको लॉन लेना पड़ेगा तो आप लॉन लीजिएगा। नॉर्मली क्वेश्चन में हम लोग उसको लॉग बेस 10 से काम करते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में हम उसको लॉग बेस ई भी लेते हैं, तो डिपेंड्स ऑन यू, बट हाँ ये प्रॉपर्टी हर जगह पे एप्लीकेबल है, किसी भी बेस में एप्लीकेबल। अगर मैं बोलो भैया कि लॉग बेस मेरा ए है, यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर आप लॉग बेस में अगर एक जगह आप बी पुट करते हैं, सी पुट करते हैं, 10, 9 कुछ भी पुट करते हैं, ई पुट करते हैं, मतलब जो नेचुरल लॉग है वो पुट करते हैं, तो आंसर मेरा सेम ही आता है, ठीक है। तो अब नहीं यहाँ लिखे एक ही बात है, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या भैया, सेकेंड प्रॉपर्टी है डिवाइडिंग प्रॉपर्टी फंक्शन, मतलब अगर ये दिया है m बाई एन के फॉर्मेट में तो आएगा ये लॉग m माइनस लॉग n। अच्छा, थर्ड वन ये क्या भैया, अगर मैं बोलूं कि log m टू द पावर n इज गिवन, m टू द पावर n, log m टू द पावर, मतलब जो फंक्शन डोमेन है मेरा, ये डोमेन में टू द पावर n है, तो ये क्या आएगा भैया, ये आएगा मेरा n log m। अच्छा जी, फोर्थ वन log बेस e ऑफ m, log बेस e ऑफ m इस हम एक स्पेशल बिल्कुल जो इसको हम स्पेशली बोलते हैं कि इसको इक्वल टू होता है 2.303 इंटू लॉग बेस 10 ऑफ m।
भैया चीज़ क्या बोला आपने, तो ये जो नेचुरल लॉगरिदम को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ फैक्टर ऑफ 2.303 विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ई। आप कैलकुलेटर में ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टाइप का इक्वल टू मारिएगा तो यही वैल्यू आएगा 2.303, ठीक है। तो 2.303 क्या है, 2.303 मेरा ई का वैल्यू है, और हम लॉगरिदम बेस ई में से मतलब नेचुरल लॉगरिदम से हम अगर किसी भी बेस में या फिर बेसिकली नॉर्मल बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं भैया तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर बोला कि हमें ई से लॉग बेस 10 नहीं चाहिए, अलग किसी लॉग में चाहिए, तो पहले आप यहाँ से 2.303 मल्टीप्लाई करके लॉग बेस 10 में लाइए, फिर उसको हम यहाँ लॉग बेस 10 से कन्वर्ट कर लीजिए बाई कीपिंग दिस फैक्टर 2.303। तो हम आगे करेंगे उसको, ठीक है। तो ये है, ये मेरा बेसिक कन्वर्शन मेथड है। अच्छा, फिफ्थ क्या भैया, फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास लॉग बेस ए, कुछ भी बेस होता है ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। मैं कुछ भी बेस मतलब ई होगा, बी होगा, एक्स होगा, 10 होगा, कुछ भी भैया कुछ भी बेस ला लिया यहाँ पर, उसका जो अगर फंक्शन मेरे डोमेन में अगर मेरा 1 है तो आंसर मेरा 0 है। कैसा आएगा भैया, तो इसका जो बेसिक देखा यहाँ पर यूज़ कीजिए एंटी लॉग, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ कीजिए एंटी लॉग। तो एंटी लॉग क्या होता है भैया कि लॉग ऑफ बेस बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई अगर है तो मेरा एक्स होता है ए टू द पावर मतलब बी टू द पावर वाई। तो ऐसे देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो 1 का वैल्यू आता है वो क्या मेरे पास ए टू द पावर 0 से आता है। देखिए तो ये मेरा बेस है, बेस ये मेरा y है, तो बेस का पावर में जाएगा y, तो b टू दी पावर y यहाँ पर क्या मैंने बेस की पावर में 0 में डाला तो a टू दी पावर 0 तो 1 ही आएगा ना भैया, तो यहाँ पर 1 आता है, लॉग ऑफ 1 इससे 0 होता है, ठीक है जी। फिर प्रॉपर्टी हो गया 6th प्रॉपर्टी। तो नंबर 6th प्रॉपर्टी है लॉग बेस a ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। भैया क्या चीज़ है, देखिए कुछ भी बेस हो, अगर बेस का जो है वही मेरा डोमेन में आ गया, जो वैल्यू मेरा बेस में है वही मेरा डोमेन में आ गया, तो इसका आंसर इसका 1 आता है। कैसे आता है, तो ये लीजिए एक्सप्लेनेशन से। मैं अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये जो इसमें इसको एंटी लॉग एक ही टाइप से यहाँ पर सिमिलर यहाँ पर इसको एंटी लॉग कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर देखिए बेस में जो आएगा ये बी टू दी पावर वाई आएगा, बी टू दी पावर वाई, तो यहाँ ए टू दी पावर 1 क्या होता है भैया, यही होता है ना, ए टू द पावर यही आएगा, इसलिए इसका 1 आता है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर बोले हम कि एग्जांपल देके कि लॉग बेस 10 ऑफ 10 ये क्या आएगा, ये मेरा 1 आएगा भैया, ये मेरा 1 आएगा। अच्छा 7th प्रॉपर्टी ये क्या है भैया, ये है मेरे पास लॉग बेस ई ऑफ एक्स, लॉग बेस ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर टी है मेरे पास, अगर मैं बोलूँ भैया कि लॉग बेस ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी है, तो बेसिक एंटी लॉग से हम बोल सकते हैं भैया ये मेरा जो एक्स आएगा ये आएगा ई टू दी पावर टी, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा बेसिक 7 प्रॉपर्टीज था लॉगरिथम में। अब यहाँ से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो उसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास भैया कि log 5/2 प्लस log ऑफ 8 इक्वल्स टू 1। भैया बेस नहीं मेंशन किया है, मतलब हमें 10 लेके काम करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो आप पहले ट्राई कीजिए खुद से 1 2 3, चलिए हम करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया, log 5/2 देखिए ये log a प्लस log b में फॉर्म क्या है भैया, ये log a है, ये log b है, ये 5/2 मेरा a, ये 8 मेरा b है, तो सब ये log a प्लस b क्या होता है, ये log a इंटू b होता है, ठीक है। अब कर लीजिए, देख लीजिए, ये आएगा log 5/2 इंटू 8, ये मेरा क्या आएगा भैया, ये मेरा log 20 आएगा, ये मेरा आंसर है। 1 लाइन में कर सकते हैं इसको। अगर भैया आपके लॉग में ये कैसे आया तो आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए वैसा। तो इसके ऑल्टरनेटली अगर हम बोले ऑल्टरनेटली अगर आप इसको बोले कि भैया log 5/2 मतलब क्या है, log 5/2 मतलब क्या है भैया, log a बाई बी है, मतलब log a बाई मतलब log a माइनस log b, मतलब log 5 माइनस log 2, ठीक है जी। अच्छा प्लस यहाँ पर देखिए log 8 है, और 8 का हम बोल सकते हैं क्या 2 टू द पावर 3, क्या ना इसे log 8 एज 2 टू द पावर 3, 2 क्यूब। भैया 2 क्यूब को क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो मेरा log 8 है ये मेरा log 2 टू द पावर 3 है, और 2 टू द पावर 3 को हम क्या बोल सकते हैं, इसको 3 log 2, ठीक। यहाँ लिख दीजिए भैया, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, ये 3 log 2 आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो 3 log 2 यहाँ पर माइनस log 2 है, तो ये क्या आएगा भैया, ये मेरा log 5 3 log 2 माइनस 1 log 2, मतलब ये क्या आएगा भैया, ये आएगा प्लस 2 log 2 भैया 2 log 2 के हम बोल सकते हैं 2 log 2 को क्या हम बोल सकते हैं, ये कि मेरा log 2 का स्क्वायर है, ये इक्वल्स टू log 4 है,
हाँ भैया देखिए इसको हमने इसको रिड्यूस किया था, यहाँ पे इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, log 4 आएगा भैया। तो क्या आएगा, ये आएगा log 4, मतलब ये आएगा log 5 प्लस log 4। log a प्लस भी क्या होता है भैया, log a प्लस भी होता है log a प्लस log मतलब log a इंटू बी। ये आएगा भैया मेरा log 5 क्रॉस 4, ये मतलब log 20। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता इतना लंबा करने के लिए आप वन स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्रोसीडिंग फर्दर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चीज कहते हैं बेसिकली प्रोग्रेशन मतलब होता है इंक्रीमेंट, प्रोग्रेशन मतलब इंक्रीमेंट, और यहाँ पर एडिटिव इंक्रीमेंट इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जा रहा है। क्या कैसे होता है ये चीज देखिए, तो हम बोले कि मेरे पास एक कोई जनरल फॉर्मेट है कि जनरल फॉर्म मेरे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है कि मेरा फर्स्ट नंबर है मेरे पास a, सेकंड नंबर मेरे पास है a प्लस सम वैल्यू d, उसके बाद थर्ड नंबर मेरे पास है a प्लस d का सेकंड मल्टीपल 2d, और ऐसे करके a प्लस 3d एंड सो ऑन टिल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ऐसा मेरे पास एक सीक्वेंस है मेरे पास भैया, a प्लस a से शुरू होके a प्लस n माइनस 1 डी, मतलब n क्या है, ये मेरा nth नंबर है, ये मेरा फर्स्ट नंबर है। ऐसा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के मेरा nth नंबर में जो सीक्वेंस है वो मेरा a प्लस n माइनस डी मेरा आ रहेगा भैया। तो इस जनरल फॉर्मेट में से इसको हम बोले, इसको पूरे रिप्रेजेंट करने के लिए अगर इसको एक वर्ड में लाए तो यहाँ जो मेरा a nth है, जो मेरा a nth टर्म जो मेरे सीक्वेंस में वो क्या आता है, ये आता है मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो a क्या है, ये चीज़ ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, वेयर a इज बेसिकली द फर्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, तो ये a तो मिल गया मुझे, इसका बॉक्स कर लीजिए पहले। मैं इसका पूरा सीरीज को मुझे ऐड करना है, अगर मुझे ये पूरा सीरीज को ऐड करना तो कैसे करेंगे भैया, तो समेशन ऑफ दिस मतलब एस एन मतलब n नंबर का समेशन, n नंबर सीक्वेंस, n नंबर तक कुछ भी हो सकता है इस सीरीज में से। अगर मैं बोलूँ कि भैया पहला 5 टर्म को सम कर लीजिए, पहला 10 टर्म को कर लीजिए, इट्स अप टू अस अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। मतलब ये n अगर nth नंबर में से nth नंबर तक द सीक्वेंस, nth नंबर सीक्वेंस तक, nth नंबर जो वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस तक उसको हम ऐड करना है, सम करना है। कैसे करेंगे इसको, कैसे करना है, तो एस एन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास n/2 इंटू फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म a nth, ये मेरा जनरल फॉर्मूला भैया। तो देखिए ये अगर इसको हम थोड़ा सा डिड्यूस कर लें, ये a n जो है a n, ये a n को हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अच्छा भैया यहाँ पर आप लिखिए इसको, ये n/2 बाहर में रहेगा और ब्रैकेट में अंदर में देखिए a प्लस, इसको हम लिखेंगे अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये a और ये a ऐड करके मेरा 2 में आ जाएगा। देखिए भैया जो मेरा a ऑलरेडी था सीक्वेंस में से, और इसको हम तोड़ेंगे, ये आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक a मुझे यहाँ से मिला और बाकी का टर्म क्या है भैया, ये आएगा n माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना, ठीक। तो इसको हम बोले कि n/2 इंटू a प्लस nth, और अगर इसको बोले कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बोथ आर करेक्ट इक्वेशंस फॉर दिस इक्वेशन। ये मेरा समेशन का फॉर्मूला है। Now take a screenshot of this slide. नेक्स्ट टॉपिक इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। भैया वो चीज़ क्या है, पहले अपने कह रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस बेसिकली जो नंबर था भैया वो मेरा जो सीक्वेंसली बढ़ रहा था, मतलब एडिटिव होकर बढ़ रहा था, ऐड होकर बढ़ रहा था। यहाँ पे मेरा ऐड नहीं होगा, ये जियोमेट्रिक है। मतलब जियोमेट्रिक जब भी आता है टर्म जियोमेट्रिक ऑलवेज रिफर्स टू मल्टीप्लाइंग समथिंग, मतलब यहाँ पे जो नंबर बढ़ रहा है भैया वो मेरा मल्टीप्लाई होकर बढ़ रहा है। तो कैसा चीज़ है, देखिए हम अगर सीक्वेंस लेते हैं, एक सीक्वेंस जो स्टार्टिंग हो रहा है नंबर ए से, जो सेकंड नंबर है मेरे पास वो अगर सेकंड नंबर मेरा r टाइम्स ऑफ a है, जो थर्ड नंबर है वो मेरा अगर r² टर्म्स ऑफ a है, जो फोर्थ टर्म है मेरा r³ टर्म्स ऑफ a है। तो ऐसा करके मेरे पास सीक्वेंस जो आएगा भैया वो rn-1 इंटू a तक जाएगा, rn-1 इंटू a तक जाएगा। देखिए जो पहले स्टार्ट था वो जो फर्स्ट नंबर है वहाँ पर मेरे पास r का वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है, r⁻0 से शुरू हो भैया। तो अगर 0 से शुरू हो रहा है तो खत्म कितना में होगा, ये r-1 में होगा। ये मेरा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और ये मेरा लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। अगर ऐसा बात है मेरे पास तो भैया जनरल इक्वेशन क्या होता है कि a nth
तो जो जनरल इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, लिख ही दिया हम लोग यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो क्या आएगा भैया, ये आएगा मेरा पास a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक, और भैया इस चीज़ में से जो समेशन होता है, तो यार समेशन इसका दो फॉर्मूला मिले होता है, कि हम लोग जो हमारा कोर्स में जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है भैया, अगर जो वैल्यू r का है, अगर जो r है वो अगर मेरे पास 0 से 1 के बीच में है, इफ द वैल्यू ऑफ r इज बिटवीन 0 to 1, मतलब r से छोटा है वेरियली, तो यह क्या आएगा, 0 से बड़ा भी है, तो जो समेशन का फॉर्मूला होता है s nth तक, वो आता है मेरे पास a by 1 minus r। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस में से इसमें हम जो करते हैं समेशन रेजिस्टेंस, उसमें एक क्वेश्चन आता है, वो हम अभी करेंगे क्वेश्चन, उसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी मूविंग फर्दर। क्वेश्चन इज इफ all the resistors are having an equal resistance of R and this thing is keep on increasing, means first we have one resistance in R in parallel, first we have one resistor R, then we have two resistors R in parallel, then we have basically four resistors R in parallel, then we'll be having 8 resistors in parallel, then it will be continuing till 16 and then 32. Basically what is happening is it is increasing in a particular order. So how to do this till infinity, basically till infinity, and how we can get the R equivalent? तो the basic rule is observation। भैया आप ऑब्जर्व करके देखिए कि जब पहला जो चीज़ है वो 1 है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला नहीं था, जो कॉमन रेशियो निकाल लीजिए, तो स्मॉल आर होता है कॉमन रेशियो। पहले हमने क्या की, जो मेरा समेशन होता है वो क्या होता है, a by 1 minus r, where r is my कॉमन रेशियो। तो ये r चीज़ क्या है, ये r आएगा मेरा टर्म सेकेंड बाई फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ पर बोलिए a2 बाई a1, या फिर आप बोलिए कि a3 बाई a2, या फिर a4 बाई a3, व्हाटएवर यू कैन से, बेसिकली सर नेक्स्ट टर्म बाय द फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म बाय द लेटर टर्म बाय द फॉर्मर टर्म। अच्छा जी, तो इसे कैसे करेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पर ऑब्जर्व देखिए, यहाँ पर r है, यहाँ पर फर्स्ट वन इज r, द नंबर फर्स्ट द a1 is basically R, the second one यहाँ पर कॉम्बिनेशन में देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है भैया, यहाँ पर इक्वल देखिए क्या है, इफ यू सॉल्व दिस वी नो भैया जो छोटा चीज़ है कि पर थोड़ा सा क्लास 10 का बेसिक रेजिस्टेंस लगाइए कि दो रजिस्टर R अगर है पैरेलल में, तो इक्वल क्या भैया होता है 1 by R प्लस 1 by R होल टू द पावर माइनस, मतलब ये आएगा R/2। ठीक है, तो R/2 अगर भैया मतलब R डिवाइडेड बाई सॉरी, तो ये क्या पहला टर्म मेरा R है, द फर्स्ट वन A1 इज बेसिकली R, और A2 क्या आ रहा है मेरे पास, A2 मेरे पास आ रहा है R आगे इक्विवेलेंट पैरेलल में आया था R/2। सो मेरा जो स्मॉल आ रहा है, मतलब जो कॉमन रेशियो है वो क्या आएगा भैया, वो आएगा मेरा सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, मतलब R/2 बाई R, मतलब ये क्या है भैया, ये मेरा आ रहा है 1/2, ये मेरा आ रहा है 1/2, मतलब कॉमन रेशियो है मेरे पास हाफ। अच्छा, अगर मेरा कॉमन रेशियो हाफ है, तो ये हाफ क्या मेरा लेस देन 1 है, एकदम भैया लेस देन 1 ही है। मेरा जो रेशियो कंडीशन था मेरे पास, अगर मेरे पास जो स्मॉल आ रहा है वो अगर रेंज कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, देन द समेशन s nth फॉर दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाज गिवन बाय a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। पहले इज अ बिगिनिंग टर्म, तो ये स्टार्टिंग टर्म क्या है मेरे पास, कैपिटल R है, तो कैपिटल R इज अ स्टार्टिंग टर्म, 1 माइनस स्मॉल r मेरा निकला है भैया 1/2, तो क्या आएगा भैया, ये आएगा R/2, R/1/2, R/1/2, मतलब 2 टर्म्स ऑफ R। ये मेरा आंसर है, मतलब ये पूरा चेन का आंसर 2 आएगा, हाँ भैया 2 आंसर आएगा पूरा। दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ जीपी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन विल प्रोसीडिंग फर्दर। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। भैया कैसा रिजल्ट, सिक्वेंशियल रिजल्ट, मतलब देखिए पहला जो है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। भैया ये जो 3 है, सेकेंड है मेरे पास स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, थर्ड वन इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये तीनों चीज़ लगभग हम लोगों ने क्लास 10 में, अगर ICSE में तो गया हुआ है, और CBSE में मतलब एनसेट में है कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ठीक है भैया, ये 11 में दिया हुआ है चीज़, ये दिया हुआ है मेरे पास। तो जो बेसिक मैथ्स का पार्ट है यहाँ पर हम दिस 3 विल बी रिक्वायर्ड सम वे और द अदर इन फिजिक्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पहला रिलेशनशिप है, पहला जो ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्या होता है आंसर देखिए, बोलिए कि अगर पहला एन नेचुरल नंबर को ऐड करने के लिए जो जनरल फॉर्मूला मुझे बोलना है, तो वह क्या आएगा भैया, तो समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स विल बी इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू m प्लस 1/2। अच्छा भैया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर तक, तो कैसा आएगा ये चीज़, वो आएगा समेशन ऑफ
square of n natural numbers will be equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 2। क्या फॉर्मूला आएगा फिर मेरे पास? वो आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई टू। और वह थर्ड वन मेरे क्यूब का जो होगा मतलब वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब एंड सो ऑन टिल n क्यूब तक, मतलब समीशन ऑफ n क्यूब, ये क्या आएगा भैया? ये आएगा पहला वाला का स्क्वायर मतलब n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला भैया, इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में अभी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। आप मुझे, आपको अगर रिक्वायर्ड है तो मुझे बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, हम लिख दें। हम आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव अ सेपरेट लेक्चर और शॉर्ट रिगार्डिंग दिस इंडिविजुअल डेरिवेशंस। तो पहले आपको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज बेसिकली स्लोप ऑफ अ कर्व। क्या भैया स्लोप ऑफ अ कर्व? तो मेरे पास, अगर मेरे पास कुछ कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी कर्व दिया है, मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन का मेरे पास कर्व आ रहा है, कुछ भी कर्व, मतलब कर्व मतलब भैया जो कर्वेचर होगा वैसा कोई बात नहीं, वो इट कैन बी स्ट्रेट एंड ऑल्सो। बट जनरली भैया अगर कर्व बोले तो उसको y इक्वल्स टू एफ एक्स का अगर कुछ मुझे बोलना है इस कार्टेशियन सिस्टम में, y इक्वल्स टू एफ एक्स का अगर मुझे बोलूँ कि मेरा y वर्सेस x का कर्व जो है, x वर्सेस y का कर्व है, उसमें मेरे पास एक y इक्वल्स टू एफ एक्स का फंक्शन दिया है, तो इसका भैया स्लोप कैसा है? अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है तो मुझे स्लोप पता है, हम लोगों ने पहले किया हुआ है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में से मेरा m स्लोप होता है मेरे इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और अलग अलग फॉर्मेट में किया है। अगर आपको देखना है तो प्लीज रेफर टू लेक्चर नंबर 2 of the series of basic mathematics। सर्च कीजिए, just type in YouTube बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 2 बाय श्रीजुति, यू विल गेटिंग द लेक्चर। नाउ बेसिक यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि y वर्सेस x में होकर कुछ कार्टेशियन सिस्टम में दिया है कोई भी कर्व, तो उसमें से भैया हर एक पॉइंट में से ना कर्व मुझे चेक करना पड़ता है। मतलब कैसे? तो ये जो कर्व है ये चेंजिंग कर्व है, यहाँ पर तो मेरा चेंज हो रहा है। तो पहले देखिए स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, पॉइंट ए इसको अगर मैं बोलता हूँ भैया, इसको मिड पॉइंट में अगर मैं पॉइंट बी बोलता हूँ और एक आखिर में कोई एक पॉइंट नियर टू एंड सी बोलता हूँ, देखिए ऑब्जर्व करके कि ए बी और सी तीनों पॉइंट में भैया कर्व मेरे पास अलग अलग स्लोप शो कर रहा है। मतलब कैसे निकालेगा भैया? तो स्लोप निकालने का बेसिक जो रूल क्या है भैया? इट इज टेंजेंट। पहले हम लोग बढ़ चुके, हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया कि भैया स्लोप क्या है? स्लोप इज बेसिकली टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट। तो ये ए पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, अगर पॉइंट ए में मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, कैसे आएगा उस चीज़ को? देखिए यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा आएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स पे, मैंने 3 पॉइंट मार्क किया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इसमें से देखिए पॉइंट ए में अगर मैं लगभग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करूँ, जो मेरा जो एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, वो मेरा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कट कर रहा है, तो भैया मेरा जो एंगल आएगा कॉरस्पॉन्डिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये जो एंगल है मेरे पास, ये मेरे पास थीटा ऑफ ए है भैया। सिमिलर ये मेरा बी से कट कर है भैया, ये क्या आएगा? ये मेरा एंटी क्लॉक में थीटा बी आएगा और ये मेरा थीटा ऑफ सी आएगा। ना कंपैरिजन में अगर देखूं भैया, तो देखिए कंपैरिजन करके जो थीटा ए है ये सबसे छोटा एंगल आ रहा है। कैसे देखिए भैया? जो एंगल ये वाला मैंने कटा है ना, ये जो मेरा ये एंगल है, ये जो लाइन है, ये लाइन, दिस लाइन इज बेसिकली the second line is more steeper. The second line is way more steeper than the first line, and the third line is also more steeper than the second line, and the rest basically. तो ये देखिए यहाँ पर थीटा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, थीटा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या लिखता हूँ? अगर मैं लिखूँ कि थीटा ए इज लेस देन थीटा बी लेस देन थीटा सी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है जी, थीटा ए लेस देन थीटा बी लेस देन थीटा सी अगर मेरे पास है, तो यार tan ऑफ द थीटा मेरा स्लोप होता है, tan ऑफ थीटा मेरे पास स्लोप आता है भैया। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि tan थीटा ए इज लेस देन tan थीटा बी इज लेस देन tan थीटा सी, और अगर मैं बोलूँ कि जो स्लोप एट पॉइंट ए इज लेस देन स्लोप एट पॉइंट बी इज लेस देन स्लोप एट पॉइंट सी, कोई गलत बात होगा क्या भैया? नहीं। तो दिस इज द थिंग दैट बेसिकली स्लोप है वो कांस्टेंट इस कर्व के लिए इंक्रीमेंट कर रहा है, वो इंक्रीज, मतलब स्लोप इज कांस्टेंटली इंक्रीजिंग। भाई स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो द कर्व इज बेसिकली गेटिंग वे मोर स्टीपर ग्रेजुअली, मतलब जो स्लोप है मेरा में ज़्यादा, जो कर्व है मेरा ये ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है विथ टाइम, मतलब जो जितना आगे जाएगा भैया उतना ये कर्व स्टीप होता जा रहा है। यही मेरा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है भैया ये कि मेरे पास एक स्लोप दिया है y वर्सेस x का कर्व में, x वर्सेस y का कर्व में y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक को कर्व दिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसमें बोला गया 3 पॉइंट्स है a b एंड c। नाउ द गिवन एंगल्स और एंगल्स सबटेंडेड बाय द लाइंस कट जॉइनिंग द पॉइंट्स विद द x एक्सिस आर बेसिकली पॉइंट a के लिए भैया
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री है, मतलब इस एंगल या एक्यूट एंगल 60 डिग्री है मेरे पास। अच्छा भैया जो पॉइंट सी है इसमें 45 डिग्री में एंटी क्लॉक में दिया है, एक्यूट एंगल भी है, और पॉइंट बी में 90 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा जी, तो इसमें ऑब्जर्वेशन करने के बाद है कि बोला कि क्वेश्चन में स्लोप एट ए बी से निकालने के लिए थीटा गिवन है भैया, थीटा गिवन है, आप जैसे उसको एंटी क्लॉक और क्लॉक चेक कर लीजिएगा और कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो क्या है भैया, जो मेरा एम फॉर पॉइंट ए आएगा, एम फॉर पॉइंट ए क्या आएगा भैया, ये 60 दिया है, लेकिन ये मेरा क्लॉकवाइज में है, मुझे एंटी क्लॉक में चाहिए। मतलब अगर मेरे पास ऐसा कुछ लाइन है जिसका जो स्लोप है मेरे पास 60 डिग्री है यहाँ पर क्लॉकवाइज में, तो मेरा जो एंटी क्लॉकवाइज का एंगल भैया ये 180 माइनस 60 मतलब क्या आएगा भैया 120 डिग्री आएगा। मतलब जो स्लोप आएगा ये मेरा ये क्या आएगा tan 120 डिग्रीज। ठीक, तो ये पॉइंट ए हो गया। अब पॉइंट बी देखिए, तो पॉइंट बी देखिए, जो पॉइंट बी है भैया, पॉइंट बी अगर मैं इसको लाइन में इसको टेंजेंट ड्रॉ करूँ एट द कर्व क्रॉसिंग पॉइंट बी, तो ये टेंजेंट आएगा मेरा कुछ इस तरह का आ रहा है। देखिए इट इज बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो मेरा पॉइंट बी के लिए हॉरिजॉन्टली इसका कर्व को कट रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होता है मतलब दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज बेसिकली पैरेलल टू द लाइन इज पैरेलल टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब ये भी आएगा 90 डिग्री आएगा भैया। तो जो लाइन अगर पैरेलल है भैया तो उसका थीटा क्या आता है 0 आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर मेरा जो लाइन है देखिए, अगर मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, मेरे पास एक लाइन है इस तरह का भैया, जो मेरा एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो थीटा बिटवीन दिस फंक्शन एंड एक्स एक्सिस क्या है, थीटा बिटवीन देम इज 0 डिग्री। मतलब tan फॉर बी, tan बी क्या आएगा भैया, tan थीटा बी क्या आएगा, वो मेरा 0 आएगा। tan 0 क्या होता है भैया, 0 होता है, मेरे पास 0 होता है। ठीक है जी। अच्छा, और m फॉर पॉइंट सी, स्लोप ऑफ पॉइंट सी के लिए क्या आएगा, ये स्लोप है पॉइंट सी के लिए, एंटी क्लॉक में दिया है, तो भैया ये क्या आएगा tan 45 डायरेक्टली, tan 45। तो सॉल्व कर लीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग, ये मेरा क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ वी आर हैविंग इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज होता जाता है, कोरस्पॉन्डिंग मेरा y का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाता है। मतलब भैया जैसे जैसे x बढ़ रहा है उसके साथ साथ y भी बढ़ रहा है। किसी तरह से भैया प्रोपोर्शनल हो सकता है या फिर प्रोपोर्शनल ना भी होके इंक्रीज कर सकता है। मतलब कैसे, किस तरह से, तो ऑब्जर्व कीजिए, तीनों मेरा एग्जांपल दिया है, तीनों मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल। देखिए भैया यहाँ पर जो अगर मैं बोलूँ भैया ये मेरे से पॉइंट ए है, बीच में एक पॉइंट बी और यहाँ पर एक पॉइंट सी है। देखिए भैया जब पॉइंट ए से जब एक्स इंक्रीज करके पॉइंट बी में आ रहा है, पॉइंट ए से एक्स इंक्रीज करके पॉइंट बी में आ रहा है, मेरा वाई भी कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ रहा है। और जब पॉइंट सी में आ रहा है भैया मेरा वाई भी बढ़ जा रहा है, मतलब एक्स और वाई साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह का स्लोप के लिए हम इस तरह का कर्व के लिए हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, तो थीटा एट एक ही रूल है भैया, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो देखिएगा भैया जो मेरा टेंजेंट है, जो एंगल सबटेन कर रहा है इन द कोरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस, वो भी मेरा इंक्रीमेंट होता जा रहा है। देखिए ये तो थीटा, अगर ये थीटा ए है, ये अगर थीटा बी है, और ये मेरा अगर थीटा सी है भैया, तो थीटा कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए यहाँ इसके लिए थीटा इज इंक्रीजिंग, तो अगर मेरा थीटा बढ़ रहा है तो थीटा इज इंक्रीजिंग, तो मेरा tan थीटा भी बढ़ेगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एम इज इंक्रीजिंग, पहला वाला के लिए, पहला वाला के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें देखिए 3 पॉइंट मार्क कर लीजिए, पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। सेम भाई रूल भैया आप ड्रॉ कीजिए, पहले जो मेरे पास टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर टेंजेंट कुछ इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर देखिए टेंजेंट, यहाँ से ड्रॉ कीजिएगा टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट से ड्रॉ कीजिए, अब दोनों पॉइंट से काम चल जाएगा, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मेरा कर्व है इसमें देखिए पॉइंट ए में जो थीटा मेरे पास है, एंटी क्लॉक में जो मेरा थीटा ए है, उससे देखिए थीटा बी, देखिए ये थीटा बी है, यहाँ पर थीटा डिक्रीज है। मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन में भी थीटा मेरा डिक्रीज हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड सॉल्व फास्ट रूल नहीं है कि मेरा अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो थीटा मेरा स्लोप डिक्रीज नहीं कर सकते, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा मेरा डिक्रीज कर रहा है, थीटा से और छोटा आ रहा है, मतलब यहाँ पर भैया थीटा वगैरह क्या आ रहा है, द थीटा इज डिक्रीजिंग ओवर हियर, सो द स्लोप इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। सिमिलरली अब थर्ड वन में देखिए, ये भैया मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखिए जो स्लोप है मेरे पास, तीनों पॉइंट ड्रॉ कीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी,
पॉइंट सी। देखिए भैया हर पॉइंट के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है वो एक ही एंगल थीटा बना रहा है, मतलब थीटा इज कांस्टेंट ओवर हियर। इफ थीटा इज कांस्टेंट मतलब जो स्लोप है मेरा कांस्टेंट है, स्लोप मेरा नॉन फ्लक्चुएटिंग कांस्टेंट स्लोप है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए द थीटा कैन बी इंक्रीजिंग, कैन बी डिक्रीजिंग और कैन बी कांस्टेंट, दस कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप कैन बी आल्सो बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ठीक है जी, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अगेन भैया डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू डिक्रीज होगा, सॉरी जैसे जैसे, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या भैया? जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज होगा मेरा y का वैल्यू डिक्रीज होगा। अच्छा जी, मतलब क्या है? तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ x वर्सेस y का कर्व, यहाँ पर सभी हर एक में x वर्सेस y का मैं 3 कर्व ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे x मेरा इंक्रीज हो रहा है, जैसे मेरा x इंक्रीज हो रहा है, y मेरा घटता है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर इस पॉइंट में अगर मैं x का वैल्यू कुछ बोलूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पर y जो वैल्यू जो भी है आगे जाते जाते y घट रहा है। इससे मिले यहाँ पर भी देखिए जो x का वैल्यू बढ़ता बढ़ता y घट रहा है, यहाँ पर भी भैया x जैसे बढ़ता है y मेरा घट रहा है। अच्छा जी, तो इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे? सेम रूल, 3 पॉइंट मार्क कीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी की लीजिए। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये मेरा पॉइंट सी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट मार्क कर लीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। एक भी यहाँ पर भी भैया पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब देखिए चेक करके, देखिए यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए पहले पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी में रेस्पेक्ट में। चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग। भैया पॉइंट ए का जो लाइन है वो कुछ इस तरह का आएगा, पॉइंट बी के लिए कुछ इस तरह का आएगा, पॉइंट सी के लिए कुछ इस तरह का आएगा। तो देखिए भैया ऑब्जर्व करके क्या कि जो मेरा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एट पॉइंट ए, ये मेरा थीटा एट पॉइंट बी है, यहाँ पर थीटा एट सी। भैया ये देखिए कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? थीटा इज बेसिकली इंक्रीजिंग। देखिए जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं मेरा थीटा ग्रेजुअली ज़्यादा मेरा थीटा बढ़ता जा रहा है। तो अगर देखिए भैया अभी अगर थीटा ए है, थीटा ए, थीटा बी है, थीटा सी है, तो ग्रेजुअली जो मेरा कर्व है ना भैया वो मेरा स्टीपर नहीं हो रहा है, ऑपोजिट। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पहला वाला होता कि अगर मैं इस तरह में मूव करता, मतलब अगर मैं माइनस इसकी तरफ मूव करता तो मेरा कर्व मुझे दिख रहा है कि इस तरह से मैं आगे जाता हूँ मेरा कर्व स्टीपर होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कर्व स्टीपर नहीं, कर्व मेरा स्टीपर नहीं फ्लैट होता जा रहा है। कर्व देखिएगा जो फ्लैट होता जा रहा है। तो अगर मेरा कर्व का स्टीपनेस घट रहा है तो भैया मेरे पास जो थीटा आएगा वो मेरा एंटी क्लॉक में तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन क्लॉक वाइज में मतलब जो रूल में क्योंकि मेरा वाई पर डिक्रीमेंट मोड में तो थीटा में ओवरऑल वैल्यू, मेरा थीटा का ओवरऑल वैल्यू एक्यूट एंगल में घट रहा है। तो मेरा जो एम आएगा वो मेरा क्या आएगा? डिक्रीज होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एंगल है वो मेरा एक्यूट एंगल में देखिए घट रहा है। देखिए एक्यूट एंगल में घट जाता जा रहा है, या फिर अगर मैं बोलूँ भैया मैं पर कि जो क्लॉक वाइज में वो मेरा घट जा रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए यहाँ पर स्लोप मेरा डिक्रीजिंग मोड में है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 पॉइंट में रेस्पेक्ट ऑफ तीनों स्लोप ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर एक स्लोप देखिए इस तरह का आएगा कुछ, और एक कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर भी देखिए भैया यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मेरा कर्व है वो भी मैं देखिए यहाँ पर कर्व मेरा ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है। यहाँ पर फ्लैट से स्टीप और देखिए जो मेरा जो पहला थीटा ए है, थीटा ए के रेस्पेक्ट में थीटा बी मेरा ज़्यादा आ रहा है, एक्यूट एंगल में ही ज़्यादा आ रहा है। तो अगर एक्यूट एंगल जाता है तो भैया तो क्या आएगा? यहाँ पर मेरा स्लोप इंक्रीजिंग मोड में है। वही तो मेरा स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एम क्या कॉन्स्टेंट आएगा, यहाँ पर एम देखिए कॉन्स्टेंट है, ठीक। यहाँ मेरा एम डिक्रीजिंग है, यहाँ पर एम इंक्रीजिंग है, यहाँ पर एम कांस्टेंट है। कैसे? क्योंकि भैया यहाँ पर देखिए जो कर्व है यहाँ पर ज़्यादा स्टीपर नहीं फ्लैट होता जा रहा है, यहाँ पर कर्व मेरा ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है ग्रेजुअली, यहाँ पर मेरा स्टीपनेस कांस्टेंट ही है, तो यह मेरा एम कांस्टेंट है, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। नाउ द थिंग इज स्लोप क्या है भैया? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लिए। देखिए ये जो मेरा है ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। भैया हॉरिजॉन्टल लाइन में अभी तुम लोगों ने देखा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग देखिए ये 2 लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस है पैरेलल है भैया तो इसका एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा। तो अगर मेरा थीटा 0 डिग्रीज है तो मेरा एम क्या आएगा भैया? ये मेरा 0 आएगा, टेन 0 होता है। यहाँ पर देखिए भैया यहाँ पर जो एंगल देखिए ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री में है, एक्स एक्सिस से 90 डिग्रीज में है, तो यहाँ पर थीटा है मेरा 90 डिग्री आएगा। तो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एम क्या आएगा? tan 90, मतलब अनडिफाइंड एफर, आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। सो मेरे यहाँ पर अनडिफाइंड एफर इन्फिनिटी स्लोप है, ठीक है जी। अच्छा इस फ्लैट को इस कर्व को कहा जाता है, इस कर्व को कहा जाता है
हॉरिजेंटल या फिर स्लीपिंग कर्व। इस कर्व को कहा जाता है हॉरिजेंटल या फिर स्लीपिंग कर्व, हॉरिजेंटल और स्लीपिंग कर्व। और इस कर्व को कहा जाता है वर्टिकल या फिर स्टैंडिंग कर्व। ठीक है जी। अच्छा, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। Thus we end the lecture 3 of the series of basic mathematics. Now take all the notes, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन थे सॉल्व कर लीजिएगा, और हम ट्राई करेंगे एक शीट इसमें ऐड करने के डिस्क्रिप्शन में। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर अ क्वेश्चन शीट, असाइनमेंट शीट, एंड भी आपका आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद, आप कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा, दिक्कत यहाँ पर लिखिए, हम हमको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो द सोशल मीडिया हैंडल्स आर बेसिकली अटैच विद दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेक ऑल ऑफ देम। तब तक के लिए जय हिंद।